So very good evening all the participants. Welcome you after the break of Ganesh Chaturthi. Section 54A to 54P on pre-pack. So pre-pack, as the name itself implies, it is some sort of a pre-package. So this pre-package is available to a limited class of corporate SSEs only because it is in part 2. So part 2 applies to corporate persons only, be it LLP or companies. Now it says that it is available to corporate MSMEs only. And in MSMEs, they have given the various definitions, various the applicability of this PPIRP to different types of companies. Maybe it's a small company or a startup and things like that. The first type of question, so we'll keep this discussion exam oriented. The first type of questions which they ask is that 54P say relates to what? Or they may say that what is the subsection which governs this consideration and approval of resolution plan? Why they are asking these questions? Because in only one section, 54A, they have covered the entire pre-pack process. Why so? Because they did not want to disturb the sequence. They had to squeeze in this because it came post-pandemic. So post-pandemic, government felt that these MSMEs, they need a special handholding. So they carved out a special type of insolvency resolution process for pre-pack, for MSMEs. Why? Because everybody may not be interested in taking over such companies because they are relatively small in size and the corporate debtor may be having a special type of knowledge about that business which others may not be having. So in this process, what is the speciality? There are 2-3 specialities of this process. The first speciality is that in this case, whenever there is a default, only the corporate debtor can initiate the process of this pre-pack. Creditor cannot initiate this process. This is one uniqueness. Although in case of normal CIRP or in case of fast track, both the debtor as well as the creditor can initiate this process. But in case of pre-pack, this process, so please correct me whenever I am wrong. So in case of pre-pack, only the corporate debtor and that too specific type, corporate MSMEs only, they can initiate this process. In the definitions also, they have made certain amendments, like the definition of base resolution plan. Section 4 talks of the trigger for this insolvency resolution process. And in section 4 also, they say that the minimum amount of default in case of pre-pack is 10 lakh rupees. And the central government can increase up to 1 crore. So, if a corporate MSME is having default and the default threshold is 10 lakhs or more, then the corporate debtor itself can initiate this process. So in a way, it's a mix. It is having features of CIRP. It is having features of voluntary liquidation also. Because in voluntary liquidation, what we studied? In voluntary liquidation, we studied that there has to be declaration by majority of directors. There has to be a special resolution or resolution depending upon the type of companies. So some of those features you will find in pre-pack also. So in pre-pack, what they say? That the process in detail. So first things first, 54A to 54P. So I'll leave this with you, which we can, which we'll be going through later also.
So this is the way to remember these sections. Now, so the application for this pre-pack process, there are rules and there are regulations. Application to adjudicating authority for pre-pack insolvency resolution process, and then there are regulations. So application for pre-pack process, this is defined in rule number 4, and it says that form number 1 has to be filed by the corporate MSMEs. So in case of corporates MSMEs, for this pre-pack, can the creditor initiate this application? Can the creditor initiate this process under PPIRP? Yes or no? No, sir. No, sir. Right. So only this is the first thing you have to remember. Fees is 15,000 and you have to serve a copy to the board also. And along with the application, what the CD has to provide? A declaration. Declaration by majority. We will see in detail whether it is majority or special majority. Then special resolution or resolution, depending upon the type of company or LLP. Approval of financial creditors. Here the process is a bit different because it's a pre-pack. So pre-pack means definitely the time period will also be shorter. So instead of 180 days, they are allowing 120 days only. And out of this 120 also, 90 days for the committee of creditors to file the resolution plan duly approved, and 30 days for the adjudicating authority. And if within a period of 90 days, the COC is not able to finalize any resolution plan, they are not able to approve it, then the RP will initiate for termination of this pre-pack process. Name and written consent of IP, that is the concept, and his report in form P8. So you will find the mix of features of various other processes which we have read till now. So some of the features have been taken from voluntary liquidation. Some of the features have been taken from CIRP. And this report concept from individual insolvency. Declaration regarding existence of any PUFE transactions, that also has to be made by the CD alone. Then audited financial statements for last 2 years and provisional financial statement for current year. So these are some of the documents which have to be attached with the application. Now, this is the process. So first of all, there has to be a public announcement. Application for PPIRP is to be there. Whenever application is admitted, then within a period of 2 days, there has to be a public announcement. But the unique feature of public announcement here is that there is no public announcement in newspapers. Only the creditors are informed. So most of the things here are taken care by the corporate debtor itself. Appointment of 2 registered valuers. So this is the chart. As I told you, this is 120 days chart. So this is the entire process in brief. Now let us read the provisions. This is a case study which we will take later. And I think I had shared this case study also in the group. केस स्टडी ग्रुप में शेयर किया था ना मैंने. हाँ जी भाई, बोल दिया करो यस और नो. केस स्टडी शेयर किया था ना ग्रुप में. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड. हाँ जी, सर किया हुआ है थिंक. है ना. हाँ 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 हाँ, जी. ठीक है. तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर एमएस 54A to 54 क्या बोलता है. सो दिस वाज an ordinance was passed on 4th of April 2021, and as we all know, this was post pandemic, to amend the Principal Act, the IBC. IBBI
notified PPIRP regulations and applicable them they were made applicable from 9th of April. What was the purpose? Because COVID-19 pandemic has impacted businesses, financial markets and economies all over the world, including India. So, and has impacted the business operations of MSMEs and exposed many of them to financial distress. So government took several measures to mitigate the distress, including increasing the minimum amount of default for initiation of CIRP to 1 crore rupees, suspending filing of CIRP for 1 year, beginning from 25th March 2020 to 24th March 2021. And the reasoning they gave for introduction of this PPIRP process was that MSME sectors, they contribute significantly to the GDP, employment in the country. It is necessary to consider and address the specific requirements of MSMEs relating to the resolution of their insolvency due to the unique nature of their business and simpler corporate structures. So the corporate structure is also simple, so many may not be interested. So it is necessary to provide a quicker IRP. IRP here means insolvency resolution process to MSMEs, ensuring quicker and cost-effective and value-maximizing outcomes for all the stakeholders in a manner which is least disruptive to the continuity of their businesses and which preserves jobs. In view of this, the principal code is amended to add a process called the prepackaged insolvency resolution process for CDs which are classified as MSM. Now, what are the amendments which were made to the code? So a proviso was added to section 4. And what it said? It says at present CIRP is applicable when default is minimum of 1 crore. So proviso is added that the central government will prescribe applicable limits amount separately for MSMEs and which shall not be more than 1 crore. And on 9th of April, central government prescribed this amount as 10 lakhs for MSMEs for this prepack. This definition of base resolution plan. So a different type of resolution plan. So base resolution plan means a resolution plan provided by the corporate debtor. Till now, we have read the concept that resolution plan is put up by an outsider. But here, the insider is putting up the resolution plan under clause C of subsection 4 of section 54A. Definitions where the word CIRP is appearing, the word PPIRP is added in all relevant sections and amended accordingly. And all forms under this regulation, they start with P. Eligibility. What is the eligibility? It should be an MSME under section 7(1) of the MSME Development Act. Default as per section 4, minimum 10 lakhs. And then there is a concept of approval from unrelated financial creditors. And two types of approvals are necessary here. Number 1, the process of selection of insolvency professional is also slightly different here. So they say the CD will first of all, what the CD will do in this prepack process? First of all, the CD will prepare the list of creditors. He will classify them into two categories, related and unrelated. Then, out of unrelated financial creditors, who can propose the name? The name can be proposed by those unrelated financial creditors who constitute not less than 10% of the debt. They will propose the name. Suppose there are, say, 4 unrelated financial creditors who have given a debt of 10% or more. So they all can propose the name, and out of them voting will take place, and whosoever gets 66% majority, that name will be selected. And then there will be certain formalities before the application is made to the adjudicating authority. This we have seen. This is the classification, investment and turnover for medium category. This you can go through on your own.
default is 10 lakhs and it is not undergoing CIRP or 3 years have not completed from the last CIRP or PPIRP as on the initiation date and no liquidation order has been passed. So this is the criteria. MCA issued a notification on 9th of April and 10 lakh rupees was notified as the minimum amount of default. Okay. Now application under section 54A. So 54A, A से क्या बनेगा? Application. ठीक है. So if they ask you under which section, the application, the applicability has to be seen. Applicability has to be seen under section 54A. So CD is eligible to submit a resolution plan under section 29A. So 29A says who is not eligible to be a resolution applicant. Who are not eligible? Undischarged insolvent, willful defaulter, control is with such a person whose account is NPA, convicted for any offence punishable with imprisonment, disqualified director, prohibited by SEBI, is a promoter of inordinate transactions, etc. है ना? So this is in brief regarding 29A. Name of the, so 29A is also applicable. ठीक है? So if he is not eligible under 29A, then he will not be able to put up this plan, but otherwise CD can put up the base resolution plan. Name of the resolution professional. IRP or RP is proposed and approved. So section 54A2E says that FC is not less than 10% in value of total debt. They may propose the name of RP and FC is representing 66% of total debt shall approve such proposal with terms of appointment of RP in form number P3. And these have to be only unrelated parties. So section along with regulation. So regulation says serve notice of meeting to all financial creditors except related parties. So first of all, what the CD will do? CD will see the initial criteria himself. That okay, that he is not disqualified under 29A. He is MSME as per the definition of MSME Act. And then he has not already undergone this CIRP process or 3 years have not completed from the last CIRP or PPIRP and no liquidation order has been passed. So if all these conditions are fulfilled, then he will make a list of the various creditors. Sir, a small doubt, sir. Yes, please. Sir, ये 3 years आप बता रहे थे ना, can we say look back period बता सकते हैं सर उसको? No. That is not the look back period. That is the actually if an SSE, if this entity has undergone CIRP or PPIRP during the last 3 years, then they are not eligible. That is the meaning. Right, sir. That decides the eligibility. So Right. something similar to section 11. Section 11. Section 11 is there in part 2. Yes, sir. Yes, sir. Okay, certain such people are not eligible. So section 11A they have introduced for this purpose. Right, sir. Section 11 says that when CIRP and PPIRP applications are filed under both, because there came a situation when CIRP and PPIRP both are applicable. Suppose the default amount is 1 crore or more, then both options are available, CIRP as well as PPIRP. But between 10 lakhs to 1 crore, only one option of PPIRP is available for MSMEs. Right. Thank you, sir. So, unrelated financial creditors. So, first of all, the CD will prepare a list and then he will serve notice of meeting to all financial creditors except related parties at least 5 days before the meeting, unless a shorter time is agreed to by all of them. Form P2 is there, and in Form P2, they have to indicate because at this stage, RP is not there. So who is giving this notice? CD is giving this notice. Form is in Form P2 that will indicate the date, time, venue, list of creditors with amount due. The financial creditors who are not related parties of the corporate debtor and have not less than 10% of the value of the total financial debt of such creditors may propose names of the insolvency professionals for the purpose of clause E of subsection 2 of section 54A. Okay. And where there are no FCs, there could be a case where there are no financial creditors or all the financial creditors are related parties. Then COC shall be of the OCs and above provision will be applicable to OC meeting mutatis mutandis. ठीक है?
तो अनरिलेटेड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अभी तक हमने क्या किया? कॉर्पोरेट एमएसएमई है। कॉर्पोरेट एमएसएमई ने व्हाट दे डिड, फर्स्ट ऑफ ऑल ही कंपाइल्ड द लिस्ट। अभी आईआरपी आरआरपी पिक्चर में नहीं है, ठीक है ना। सीडी खुद ही लिस्ट प्रिपेयर कर, सीडी को पता है उसके कितने क्रेडिटर है ना, उसने पूरी लिस्ट बना ली और अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को सेग्रीगेट कर लिया। नाउ आउट ऑफ दिस वो सारे जो भी अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर है उनके लिए मीटिंग कॉल कर ली, नोटिस दे दिया फॉर्म P2 में। ठीक है, एंड दोज कॉन्स्टिट्यूट नॉट लेस देन 10% दे मे प्रपोज द नेम। ठीक है, चलिए। One doubt, sir. यस प्लीज। They will declare declaration of avoidance transaction जब ही कर लेते हैं सर, या बाद में कर लेते हैं सर? ना ना नहीं, वो तो एप्लीकेशन के टाइम पर होगा, ओके, जब एप्लीकेशन होगा ना। यस सर। अभी तो एप्लीकेशन हुआ ही नहीं ना, अभी तो एक ही प्रोसेस हुआ। क्या हुआ? पहले उसने देख लिया भाई वो एलिजिबल भी है या नहीं है। अगर मान लीजिए एमएसएमई है बट उसका डिफॉल्ट 1 करोड़ और मोर है, तो देन इज नॉट एलिजिबल ईयर, है ना। फिर उसको नॉर्मल सीआईआर उस पर जाना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन है उसके पास, राइट, पीपीआईआरपी में भी जा सकता है और सीआईआरपी में भी जा सकता है। राइट सर। क्रेडिटर तो जा ही नहीं सकता इसमें, ओनली दी सीडी कैन को। अभी हमने क्या किया, सिर्फ एक लिस्ट बनाई है अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की और उनको फॉर्म P2 में नोटिस दे दिया। और वहां पर कौन सेलेक्ट कर सकते हैं नेम ऑफ द आईआरपी और आरपी, दोज कॉन्स्टिट्यूटिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल डेट टू अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, वो नाम प्रपोज करेंगे, उसकी वोटिंग होगा, जिसको 66% मिल जाएगा वो आरपी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक क्लियर है यहां तक? यस सर। अब क्या करना है, उसके बाद में डिक्लेरेशन देना है। ये डिक्लेरेशन के कॉन्सेप्ट कहां से आई? ये आई वॉलंटरी लिक्विडेशन से। वहां पर होता है ना डिक्लेरेशन। सो हियर डिक्लेरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स और पार्टनर्स ऑफ CD 54A2F, majority of the directors or partners of CD they have made a declaration in form P6। तो फॉर्म P6 में डिक्लेरेशन होगा। क्या होगा? दैट द CD shall file an application। ये डिक्लेरेशन में देगा भाई हम फाइल करेंगे फॉर इनिशिएटिंग PPIRP विद इन ए डेफिनेट टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। बोला भाई हम डेफिनेट टाइम पीरियड में एप्लीकेशन फाइल कर देंगे नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। ठीक है, दैट द PPIRP इज नॉट बीइंग इनिशिएटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन। ये कहां से उठा लाए? वॉलंटरी लिक्विडेशन से। ये हाइब्रिड बना दिया इसको PPIRP, क्योंकि जब तक PPIRP सारे आ चुके थे, CIRP, फास्ट ट्रैक, लिक्विडेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी, इसमें सबका मिक्स डाल दिया। ठीक है, ये डिफ्रॉड वाली कॉन्सेप्ट कहां से आई है? डिफ्रॉड वाली कॉन्सेप्ट कहां से आई है? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, मेरे माइंड में आ गया। सेक्शन 10 की एप्लीकेशन में भी ऐसा कोई डिक्लेरेशन होता है क्या? सपोज CD इज फाइलिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 10, नॉर्मल CIRP में होती है सेक्शन 10 वाली एप्लीकेशन। The question here is whether while filing section 10 application also there is a similar requirement कि भाई it is not being initiated to defraud any person। ग्रुप में लिखिएगा, ठीक है, देख करके। इट इज नॉट देयर सर। हाँ, नहीं एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। देखो पर्पस क्या होता है, पूरा दोबारा पढ़ लेना चाहिए। अब हाँ, सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 एप्लीकेशन में फॉर्म शायद P6 जाता है ना, P6 कह रहा हूं, वो फॉर्म 6 जाता है ना। राइट सर। तो फॉर्म 6 एक बार प्लीज गो थ्रू, उसका देख लीजिएगा लास्ट में कोई डिक्लेरेशन वगैरह में है तो नहीं है, पूजा जी? जी सर, हाँ, ठीक है। तो इसको फॉर्म 6 को एक बार देख लीजिएगा कि वहां कोई एनेक्सर में या उसमें कहीं लिखा तो नहीं है। जस्ट ग्रुप पे लिखिएगा, पढ़िएगा। पर्पस ये है, पूरा एक एक लाइन पढ़नी है तब पता चलेगा आपको। चलिए, द नेम ऑफ द IP proposed and approved to be appointed as resolution professional under clause E of subsection 2 of section 54A। ठीक है जी। तो members of the CD have passed a special resolution approving the filing of an application for initiating PPIRP। क्या होगा? एक तो कॉपी ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेंबर्स ऑफ द CD, डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स इन फॉर्म P6 और बेस रेजोल्यूशन प्लान विच कंफर्म्स टू द रिक्वायरमेंट्स रेफर टू इन सेक्शन 54। एक ये बेस रेजोल्यूशन प्लान यहीं पर ही दे देंगे। वो क्या है?
कि इट शुड नॉट कंटेन ए हेयर कट टू ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। ठीक है, अब ये सेक्शन 30 को भी मिला दिया इन्होंने यहां पर। एंड सच अदर कंडीशंस एज में बी स्पेसिफाइड, एंड सच अदर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स एज में बी स्पेसिफाइड। ठीक, अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले लिस्ट लिस्ट बनाई सीडी ने अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की, जो नॉट लेस देन 10% है उनको वोटिंग का राइट दे दिया, उन्होंने अपना एक आरपी सेलेक्ट कर लिया। डिक्लेरेशन हो गया कि भाई दे विल फाइल एन एप्लीकेशन विद इन डेफिनेट टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 90 days. days. It is not being initiated to defraud any person or name of the IP proposed and approved to be appointed. ठीक है, फिर मेंबर्स ने क्या किया, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया और सीडी ने फिर ये इंफॉर्मेशन दी है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को। क्या, एक तो कॉपी ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन, डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स, एक बेस रेजोल्यूशन प्लान, सच अदर डॉक्यूमेंट्स। अब एफसी जो है ये दूसरा अप्रूवल दे रहे हैं। पहला अप्रूवल उन्होंने क्या दिया था एफसी ने, रिगार्डिंग द नेम ऑफ द आरपी। IP. सेकंड क्या है, सेकंड ये है अप्रूवल फॉर फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। Yes. ठीक है, क्योंकि प्री पैक है। प्री पैक का मतलब आधी चीजें तो शुरू में ही डिसाइड कर लो जाने से पहले, अभी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पहुंचे नहीं है ना, क्योंकि वो चाहता है भाई पहले से ही डिसाइडेड हो तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो सीडी शैल ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम इट्स एफसी नॉट बीइंग रिलेटेड पार्टीज representing not less than 66% in value of the financial debt due to such creditors for the filing of an application। तो एप्लीकेशन फाइलिंग के लिए भी अप्रूवल ले लिया इन फॉर्म P4। वेयर सीडी डजंट हैव एफसी, अगर कोई एफसी है ही नहीं या ऑल आर रिलेटेड पार्टीज, देन अप्रूवल ऑफ ओसी शैल बी ऑब्टेन्ड एज पर दिस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर। किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिए अभी। क्लियर सर। यहां तक क्लियर है ना? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अब एफसीज अप्रूवल, ये जो है द कॉर्पोरेट डेटा शैल ऑब्टेन एन अप्रूवल फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नॉट बीइंग इट्स रिलेटेड पार्टीज रिप्रेजेंटिंग नॉट देन 66% इन वैल्यू फॉर द फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन। अगर नहीं है तो ओसीज अप्रूवल दे देंगे। हमने दो अप्रूवल ले लिए फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के। भाई देखो नॉर्मल सीआईआरपी में क्या होता है, नॉर्मल सीआईआरपी में अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर के पास ही पावर होती है ना, वहां भी जो सीओसी बनती है वहां इतनी कहानी करने के बाद में लास्ट में 66% अप्रूवल होता है, यही होता है ना रेजोल्यूशन हाँ प्लान। वो बातें इन्होंने शुरू में ही कर दी, अभी एप्लीकेशन फाइल भी नहीं की है ना, फाइनेंशियल क्रेडिटर ने पहले ही अप्रूव कर दिया, उसको क्या बेस रेजोल्यूशन प्लान दे दिया, स्पेशल रेजोल्यूशन दे दिया, डिक्लेरेशन दे दिया, और भी जो भी फॉर्मेलिटीज है वो सारे दे दी और उन्होंने अप्रूव कर दिया। इसका मतलब 66% तो एग्रीड है ना इसके लिए, है ना, अभी पहुंचे भी नहीं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। सो प्रायर टू एफसीज अप्रूवल सीडी मस्ट प्रोवाइड देम, एक तो डिक्लेरेशन देना है फॉर्म P6 में, स्पेशल रेजोल्यूशन देनी है, बेस रेजोल्यूशन प्लान देना है, एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज में भी स्पेशल। ठीक है, अच्छा अब यहां पर क्या कहा कि भाई वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज नो फाइनेंशियल डेट और वेयर ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आर रिलेटेड पार्टीज, तो कमेटी किसकी बनेगी, ओनली ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। इसके ऊपर सवाल भी आया था एग्जाम में। वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज नो फाइनेंशियल डेट और ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आर रिलेटेड पार्टीज, द कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स बीइंग नॉट रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट डेटर एज अंडर। तो वहां पर कितना नॉर्मल सीआईआरपी में कितना नंबर होता है, 18 largest. 18 लार्जेस्ट। यहां पर कितना हो गया 10, 10 large. 10 largest operational creditors by value, and if the number of operational creditors is less than 10, the committee shall include all such operational creditors। एक रिप्रेजेंटेटिव होगा इलेक्टेड बाय वर्कमैन और एक रिप्रेजेंटेटिव होगा इलेक्टेड बाय ऑल एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये कमेटी बना दी इन्होंने और वो कमेटी 66% से अप्रूव। सर वहां 18 + 1 + 1, यहाँ 10 + 1 + 1 जी। है ना सर? रेगुलर CIRP it is 18 + 1 + 1, here it is 1 10 + 1 नहीं है, वहां 1 नहीं है सिर्फ, here 10 + 1 + 1। यहाँ 10 + 1 + 1 है, वहां 18 + 1 है बस। एक Correct, ही sir। रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर का, वहां वर्कमैन एम्प्लॉयज में डिस्टिंक्शन नहीं है ओके ओके नॉर्मल सीआईआरपी में, ओके है ना।
राइट कंफर्म सर। कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से एक ही वहां ऑपरेशन, एक ही रिप्रेजेंटेटिव आता है। यहाँ अच्छा, दो आ गए, एक वर्कमैन का आ गया और एक एम्प्लॉयज। ठीक है सर, बिल्कुल। सो कमिटी विद ओनली क्रेडिटर्स इन ए क्लास, उसमें क्या होगा भाई? क्रेडिटर्स इन ए क्लास आपको मालूम ही है ना, क्रेडिटर्स इन ए क्लास हैव बीन डिफाइंड वेयर द कॉर्पोरेट डेटर्स ओनली क्रेडिटर्स इन ए क्लास एंड नो अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर हु आर नॉट रिलेटेड पार्टीज, द कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ ओनली द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो उस केस में ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ही आएगा, सीओसी। ठीक है, क्लियर है? The authorized representative of creditors in a class shall be entitled to receive fees for every meeting of the committee attended by him in the following manner. नंबर ऑफ क्रेडिटर्स इतने हैं तो इस हिसाब से ये फीस। अब यहां पर आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि अभी क्या हुआ है, नॉर्मल सीआईआरपी में फीस ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैज बीन इंक्रीज्ड, है ना, हुई है ना इंक्रीज? ये हमने कवर भी किया था सीआईआरपी पे। जी एंड सर। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फैसिलिटेटर आल्सो। हाँ जी। यहां पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, और आपको ये भी कंफर्म करना है कि यहां पर फीस भी इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है। मेरे हिसाब से फीस इंक्रीज नहीं हुई है, देयर इज नो सच नोटिफिकेशन। ठीक है, बट आप ग्रुप में कंफर्म करेंगे कि सीआईआरपी में तो फीस इंक्रीज हुई है ना, लेकिन यहां इंक्रीज हुई कि नहीं हुई? मेरे हिसाब से नहीं हुई, बट यू हैव टू कंफर्म विद द ग्रुप। थोड़ा पढ़ो फिर उसको ग्रुप में। क्या क्या कंडीशंस है? कोई सीआईआरपी या पीपीआईआरपी नहीं है ड्यूरिंग 3 years, नॉट अंडरगोइंग सीआईआरपी, नो लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन पास्ड, एलिजिबल अंडर 29A, एफसी इज प्रपोज द नेम ऑफ द आईपी विद 66% majority, majority of the directors or partners passed the declaration, and then special resolution और resolution by 3/4 of the partners। रेजोल्यूशन होगा उस केस में एलएलपी में, और स्पेशल रेजोल्यूशन हो जाएगा इन केस ऑफ कंपनी। ठीक है, क्योंकि एलएलपी में तो कोई वो स्पेशल रेजोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं ना, वहां तो कैपिटल वाला तो कोई फंडा नहीं है, तो नंबर के ऊपर डिपेंड करे। ठीक है, डिक्लेरेशन बाई मेजोरिटी ऑफ पार्ट डायरेक्टर्स और पार्टनर्स क्या है? दे विल फाइल द पीपीआईआरपी एप्लीकेशन विद इन डेफिनेट टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 days। पीपीआईआरपी इज नॉट बीइंग डन टू डिफ्रॉड एनी पर्सन एंड नेम ऑफ द आईपी प्रपोज्ड एंड। उसके बाद में आ गया अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड हिज ड्यूटीज बिफोर इनिशिएशन ऑफ पीपीआईआरपी। अभी क्या है, एप्लीकेशन फाइल नहीं हुआ, इन्होंने क्या कहा, वी विल फाइल द एप्लीकेशन विद इन डेफिनेट टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 days। 90 days। लेकिन आरपी 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 का सिलेक्शन कर लिया एफसी। आरपी का सिलेक्शन किस लिए कर लिया? अब वो ये कंडीशंस को देखेगा कि भाई ये वाली कंडीशंस, ये सारी कंडीशंस वो चेक करेगा आरपी, क्यों भाई सीडी मे नॉट बी इक्विप्ड, है ना, सीडी हो सकता है गलत फहमी में हो, तो ये सारी कंडीशंस देखेगा और अपनी रिपोर्ट देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो ये रिपोर्ट वाले कॉन्सेप्ट कहां से ले आए? इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसीज, है ना, वहां पर भी है ना कि भाई अगर फ्रेश स्टार्ट है तो रिपोर्ट देनी है, इंसॉल्वेंसी है तो रिपोर्ट देनी है। ठीक है, सो आरपी शैल हैव द फॉलोइंग ड्यूटीज फ्रॉम द डेटाबेस। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है, एक और होमवर्क है, क्या बैंक्रप्सी में भी कोई रिपोर्ट देनी है? फ्रेश स्टार्ट में रिपोर्ट देनी है? इंसॉल्वेंसी में रिपोर्ट देनी है? क्या बैंक्रप्सी में भी रिपोर्ट देनी है? ये आपके लिए होमवर्क है, आप ग्रुप में लिखिएगा। भाई वो तो पढ़ चुके ना आप बैंक्रप्सी तो। अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड हिज ड्यूटीज बिफोर इनिशिएशन ऑफ पीपीआईआरपी। तो आरपी shall have the following duties from the date of his appointment done under 54A2E। फॉलोइंग आर द ड्यूटीज। सबसे पहले एक रिपोर्ट बनाएगा इन फॉर्म P8। ठीक है, कंफर्मिंग वेदर द कॉर्पोरेट डेटर मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 54A एंड द बेस रेजोल्यूशन प्लान conforms to the requirements referred to in clause C of subsection 4 of 54A, that is the base resolution plan which conforms to the requirement referred to in section 54K। तो 54K का जिस्ट मैंने आपको पहले बता दिया। 54K में क्या है, कहता है देयर शुड नॉट बी एनी हेयर कट टू ऑपरेशनल क्रेडिटर्स इनिशियली। ठीक है, फाइल सच अदर रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स विद द बोर्ड एज मे बी स्पेसिफाइड एंड परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज मे बी स्पेसिफाइड। ठीक है,
Above responsibilities of IP shall cease on application for initiating PPIRP is admitted or rejected. अभी क्या हुआ है, ना तो एप्लीकेशन एडमिट हुई है ना रिजेक्ट हुई है। ये वाला जो रोल है, इसके तीन रोल है यहां पर। जैसे डबल रोल तो आपने सुना होगा फिल्मों में, यहाँ ट्रिपल रोल है आरपी का। पहला रोल क्या है, पहला रोल है बिफोर इनिशिएशन ऑफ पीपीआईआरपी प्रोसेस। ठीक है, इसको ही देख लेना है कि रिक्वायरमेंट्स मीट करता है कि नहीं, रेजोल्यूशन बेस्ड रेजोल्यूशन प्लान ठीक है कि नहीं, ये सारी चीजें ये देख रहा है। ठीक है, above responsibilities of IPCs on application for initiating PPIRP is admitted or rejected by the A as the case may be, or CD failed to initiate application to adjudicating authority। भाई उसने डिक्लेरेशन दिया था कि 90 डेज में एप्लीकेशन फाइल कर देंगे, मान लो 90 डेज में एप्लीकेशन ही फाइल नहीं होती, तो फिर क्या होगा, उस केस में भी ये जो है दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल सीज। फीस पेबल टू द आरपी फॉर ड्यूटीज अंडर सेक्शन 54B(1) as above to be borne by CD in case CD could not initiate PPIRP process or application is initiated, else shall form part of the PPIRP cost. CD will maintain separate bank account for this fees and expenses to be incurred by IP from time to time, and this bank account shall be operated by IP। ठीक है भाई, 90 डेज में एप्लीकेशन फाइल करनी है ना, 90 डेज तक तो कुछ खर्चे तो होंगे ना इसके, तो उसके लिए क्या करेगा, सीडी एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल देगा और उसका सिग्नेटरी कौन होगा, आरपी। आरपी। ठीक है, चलिए अब इसकी ड्यूटीज क्या है, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है फॉर्म P8 में, सच अदर रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड परफॉर्म सच अदर, वो रेगुलेशंस में बताए। अब चलिए, so DT of proposed IP ceases when CD fails to submit the application or application is admitted or rejected। दोनों सिचुएशन में ये वाली ड्यूटी खत्म हो जाएगी। चलिए, इनिशिएशन ऑफ PPIRP फॉर CD, सेक्शन 54C। So if conditions under section 54A are fulfilled, CD can initiate application under PPIRP। एप्लीकेशन आपको फॉर्म फाइल करनी है फॉर्म 1 के अंदर, ये हमने पे देख लिया है ना, फीस आपका 15,000 रुपीज। इसके अंदर देर आर 3 पार्ट्स इन फॉर्म 1। पार्ट 1 इज अबाउट डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट एंड CD, सेकेंड पार्ट इज ऑफ IP, एंड थर्ड पार्ट इज फॉर डिटेल्स ऑफ द क्रेडिटर्स और डेटर। जब ये शुरू हुआ था ना एग्जाम, इसमें ये भी पूछ लेते थे कि फॉर्म 1 में जो फर्स्ट पार्ट है वो किससे पर्टेन करता है, आजकल वो नहीं पूछ रहे हैं, है ना। So where electronic facility is not available, so they can submit in USB। The corporate applicant under sub rule 1 shall serve a copy of application to the board। बोर्ड को भी एक कॉपी देनी है by registered post or speed post or by hand or by electronic means before filing it with the adjudicating authority। The application shall be filed before the adjudicating authority in accordance with these NCLT rules। A corporate applicant shall inform the adjudicating authority about the filing of any winding up petition against the corporate debtor after becoming aware about such filing। ठीक है, applicant along with the application shall furnish copy of the special resolution passed, approval of 66% financial creditors, consent of IP in form P1, and a declaration regarding existence of any transaction, those of avoidance nature। तो ये सारी चीजें इसको फाइल करनी है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। ये भी एक यूनिक फीचर है। CIRP में क्या हो रहा था, CIRP में जो अवॉइडेंस एप्लीकेशन है वो RP या लिक्विडेटर फाइल करता है, यहां पर CD खुद ही फाइल कर रहा है। अब आप कहोगे CD खुद फाइल क्यों करेगा, CD खुद क्यों कहेगा भाई मैंने PUFE ट्रांजेक्शन किए। ये इसका लॉजिक ये है कि ऐसा हो सकता है कि कॉर्पोरेट डेटर माइट हैव चेंज्ड हैंड्स, ठीक है ना, और एक क्विकर प्रोसेस है, तो हो सकता है पहले कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन हुई हो बिफोर द न्यू मैनेजमेंट हैज टेकन ओवर। तो इसीलिए वो कहता है कि अगर कोई PUFE ट्रांजेक्शन है तो उसके बारे में बताए। A will accept or reject the application within 14 days। It will accept the application if it is complete or reject the application on before rejection 7 days time for correction if any। वो CIRP वाला प्रोसेस, ठीक है। So PPIRP commencement date is the date of order passed by the adjudicating authority accepting the application। ठीक है, फिर सेक्शन 54D है। D से क्या बनता है हमारा, ड्यूरेशन। D को कैसे याद करना है, ड्यूरेशन।
सी से क्या बनता है? कमेंसमेंट या इनिशिएशन। ठीक है। 54D, 54D हो गया पीपीआईआरपी टू बी कंप्लीटेड विद इन 120 डेज फ्रॉम द पीपीआईआरपी, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये कॉन्सेप्ट क्या आती है यहां पर? एक कॉन्सेप्ट आती है प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। जैसे हमने सीआईआरपी में क्या पढ़ा था? सीआईआरपी में कॉन्सेप्ट है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, है ना? 29 इंस्ट्रक्शन। हाँ जी। और यहां क्या हो गया? एक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और एक फिर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तो आरपी बनाएगा और ये प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ये सीडी बनाएगा। और पीपीआईआरपी कॉस्ट में क्या होगा? पीपीआईआरपी कॉस्ट मोटा मोटा जैसे वहां सीआईआरपी कॉस्ट है वैसे यहां पर पीपीआईआरपी कॉस्ट। अब ये जो 120 डेज का पीरियड है ये कहां से शुरू होता है? दिस पीरियड इज बिगिनिंग फ्रॉम द प्रीपैकेज्ड इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट and ending on the date on which an order for approval of the resolution plan or termination of PPIRP or initiation of CIRP is passed by the adjudicating authority. ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ऑफ एडमिशन और एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन बाय ए अंडर सेक्शन 54C। सेक्शन 54E, सेक्शन 54E क्या बोलता है? द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल on the prepackaged on the prepackaged insolvency commencement date along with the order of admission under section 54C declare moratorium period। section 14, section 14 अप्लाई हो जाएगा अगर एप्लीकेशन एडमिट हो गई। देन अपॉइंट आरपी, क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे या अनरिलेटेड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स थे वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है, दे हैव सिंपली अप्रूव्ड द नेम। ठीक है। उसके बाद में कॉन्सेप्ट फाइल करेगा और अल्टीमेटली अपॉइंटमेंट होगी एडजुडिकेटिंग। अपॉइंट आरपी एज नेम्ड इन द एप्लीकेशन बाय सीडी और बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन बाय बोर्ड इफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग अगेंस्ट द प्रपोज्ड आरपी। ठीक है। अब ये जो आरपी अपॉइंट हो गया ये क्या करेगा? पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा विद इन 2 days फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट इन फॉर्म P9। ये फॉर्म P9 है। In the manners which shall be sent to every creditor which is listed in form P2, sent to information utilities and published on the website if any of the corporate debtor and the board। तो यहां पर क्या हो रहा है? पेपर में अनाउंसमेंट नहीं हो रही। ठीक है। P2 किसने प्रिपेयर किया? P2 प्रिपेयर किया सीडी ने, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। तो एक तो जो सारे लिस्ट में नाम है उनको भेज देगा, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज को भेज देगा, और अगर सीडी की कोई वेबसाइट है वहां पर और बोर्ड की कोई वेबसाइट है तो वहां। ठीक है। 54G, 54G क्या बोलता है? सीडी विद इन 2 days ऑफ द कमेंसमेंट डेट। भाई उसने लिस्ट ऑफ क्रेडिटर तो पहले ही बना रखी है। ठीक है ना? तो सीडी क्या करेगा? सीडी शेल सबमिट द लिस्ट ऑफ क्लेम्स एज अपडेटेड एज ऑन द डेट ऑफ सबमिशन टू आरपी इन फॉर्म P10। ये फॉर्म P10 क्या है? फॉर्म P10 है लिस्ट ऑफ क्लेम्स एंड प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम containing information relevant for formulating a resolution plan. If submitted list of claims or preliminary information memorandum is misleading, क्योंकि यहां पर देखो ड्यूटी किसकी है? सीडी की ड्यूटी है। मान लो सीडी ने कोई नाम इंक्लूड नहीं किया, है ना, पेपर में एडवर्टाइजमेंट आप कर नहीं रहे, तो उस केस में क्या होगा? जो भी डायरेक्टर है या पर्सन प्रोवाइडिंग सच मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, shall be liable to every person who sustained loss due to such misleading information and shall be liable to pay compensation to all such persons if information is submitted without the knowledge of the person, he will not be liable for action। है ना? और जिसको लॉस हुआ उसके लिए वो क्या कहा? ही मे मूव टू कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर सीकिंग कंपेंसेशन फॉर लॉस। अब यहां वर्ड क्या यूज किया गया? कॉम्पिटेंट कोर्ट। एनसीएलटी ने लिखा या डीआरटी ने लिखा। इसको कहां जाना है कंपेंसेशन के लिए? कोर्ट में जाना है। ठीक है। देन सबमिट द बेस रेजोल्यूशन प्लान बाय सीडी टू आरपी विद इन 2 days ऑफ द कमेंसमेंट डेट एंड आरपी टू प्रेजेंट दिस प्लान टू सीओसी। ठीक है। एप्लीकेशन एडमिट हो गया, क्या क्या एक्शन लेने हैं? मॉरेटोरियम हो जाएगा। उसके बाद में मॉरेटोरियम के बाद में क्या होगा? पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा आरपी। किस किस को भेजेगा? जो भी क्रेडिटर है विच इज लिस्टेड इन फॉर्म P2।
इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज को भेज देगा और वेबसाइट ऑफ द सीडी एंड बोर्ड। 54G क्या बोलता है? सीडी क्या करेगा? विद इन 2 days ऑफ द कमेंसमेंट डेट एक तो अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम्स देगा इन फॉर्म P10, ठीक है, और एक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा और एक बेस रेजोल्यूशन प्लान बनाएगा। बेस रेजोल्यूशन प्लान तो उसने पहले भी बना रखा था, है ना? बेस रेजोल्यूशन प्लान तो एप्लीकेशन फाइल करने से पहले भी था। उस बेस रेजोल्यूशन प्लान पर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का भी अप्रूवल है ना? नाउ 54D, 54D टॉक्स ऑफ ड्यूरेशन। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है? इट इज 120 days। आरपी shall submit resolution plan to A as approved by the COC within 90 days। तो इसमें 90 days रखे हैं आरपी के लिए और 30 days रखे हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लिए, और यहां पर कोई एक्सटेंशन का प्रोविजन नहीं है। हालांकि कोर्ट्स ने कहा है बाद में अगर रीजनेबल हो तो एक्सटेंशन भी हो सकता है। Where COC did not approve the resolution plan within period of 90 days, RP on the expiry of 90 days shall file an application with the adjudicating authority to terminate this PPIRP process। तो 91st डे को एप्लीकेशन लगा देगा फॉर टर्मिनेशन ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। बेस रेजोल्यूशन प्लान, प्लान प्रोवाइडेड बाय द CD and fees payable to the IP proposed to be appointed as a resolution plan to perform duties before initiation of PPIRP shall form part of the PPIRP cost। ये हो ही गया हमारा, है ना? ये तो हमने देख लिया। नाउ 54F, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब 54F, F को कैसे याद रखोगे आप? F मतलब फंक्शंस, है ना? तो मैंने इसका बना दिया, F से वर्ड बना दिया फंक्शंस। फंक्शन से याद आ जाएगा आपको, क्योंकि वो कई बार पूछ लेता है कि 54F क्या बोलता है। तो 54 में ड्यूटीज एंड पावर्स है, ड्यूटीज एंड पावर से मिलता जुलता ही वर्ड है फंक्शन, है ना? तो F से आपको फंक्शन याद रखना। जैसे D से ड्यूरेशन है, C से कमेंसमेंट या इनिशिएशन है, A से आपका एप्लीकेबिलिटी है। इस तरह से धीरे धीरे याद हो जाएंगे आप। ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल 54F। अब लिस्ट ऑफ ये पी, पहले उसने P2 बनाई लिस्ट सीडी ने, फिर P10 बनाई आफ्टर पब्लिक अनाउंसमेंट। ये क्या करेगा? ये उसको कंफर्म करेगा। भाई सीडी को पता है ना कौन क्रेडिटर है कौन नहीं, इसको क्या पता? पब्लिक अनाउंस पेपर में तो हो नहीं रही। कंफर्म द लिस्ट ऑफ क्लेम सबमिटेड बाय द सीडी इन फॉर्म P10 बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा एंड अदर रेलेवेंट मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। द आरपी शैल कंफर्म द डिटेल्स रिसीव्ड इन फॉर्म P10। तो जो P10 उसने बनाया था उसको ये कंफर्म कर लेगा। आरपी शैल इन्फॉर्म एवरी क्रेडिटर रिगार्डिंग इट्स क्लेम एज कंफर्म्ड बाय हिम एंड सीक ऑब्जेक्शंस इफ एनी। भाई उसने लिस्ट बना दी कंफर्म, तो इसको ही करना है ना कि जेन्युइन क्लेम है या नहीं। हो सकता है सीडी को झूठा ही क्लेम डाल दे किसी को, तो ये कंफर्म करेगा। A creditor may submit objection along with supporting documents to the RP within 7 days from the receipt of communication under sub regulation। ठीक है भाई, अगर मान लो P10 में उसने 10 lakhs का क्लेम दिया, आरपी बोला नहीं जी आपका तो 8 lakhs का बनता है, ठीक है ना? तो क्रेडिटर क्या है? वो ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकता है विद इन 7 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ कम्युनिकेशन अंडर सब रेगुलेशन। आरपी may call for such other evidence or clarification as he deems fit from a creditor for substantiating the whole or part of the claim। RP shall consider every objection received and modify the claim of the creditor if required। The resolution professional shall maintain a list of claims in form P10 and update it as and when required। तो फॉर्म P10 जो है अपडेट करता रहेगा, ठीक है। ये जो फॉर्म P10 है, this shall be available for inspection by the creditors, members, partners, directors and guarantors of the CD, displayed on the website if any of the CD, filed with the board on electronic platform and presented at the meeting of the committee as and when updated। ठीक है, अगर मान लो कोई अमाउंट प्रिसाइज नहीं है तो आरपी शैल मेक बेस्ट एस्टिमेट। बाकी वो सारे वो प्रोविजन CIRP वाले ही। अगर फॉरेन एक्सचेंज में कोई डेट है तो उसको क्या होगा? वो एज ऑन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट, ठीक है। अगर if any debt is transferred or assigned, then both the creditors and the party to whom the debt was assigned will confirm to RP। ठीक, असाइनमेंट के केस में भी जो CIRP वाले प्रोविजंस हैं उसमें स्लाइट चेंज है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको दोनों प्रोविजन पढ़ने हैं। आपको CIRP वाला प्रोविजन भी पढ़ना है
और ये वाला प्रोविजन भी पढ़ना है, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। मॉनिटर मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स, अब यहां पर देखो थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है, यहां पर कस्टडी एंड कंट्रोल की बात नहीं हो रही। देखो आपने पूरा सेक्शन पढ़ लिया, कहीं कस्टडी एंड कंट्रोल की बात आई? सीडी ही मैनेज कर रहा है। ये क्या है, ये मॉनिटर करेगा आरपी। ये नहीं कि उसकी पावर सस्पेंड हो गई, जैसे उसमें था ना सीआईआरपी में कि पावर सस्पेंड हो जाती है। यहाँ पावर कोई सस्पेंड नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, ही इज एक्टिंग एज मॉनिटर। तो कंप्लायंस कौन करेगा, सीडी करेगा। ये क्या करेगा, ये मॉनिटर करेगा। और अगर कोई गड़बड़ है तो सीओसी को बताएगा, ठीक है। और सीओसी चाहे तो उसको हटा भी सकती है, वो आगे बढ़ेगी। So he will monitor the management of the affairs of the CD, and if there is any breach, then he will inform the COC. और COC 66% majority से उसको हटा भी सकते हैं। He will constitute the COC. He will convene and attend the COC meeting. He will appoint 2 registered evaluators within 3 days of his appointment. He will prepare the information memorandum within 14 days from the commencement date on the basis of preliminary information memorandum and other relevant information. And he will file application with AA for avoidance fraudulent wrongful trading by 60th day of the insolvency commencement date, ठीक। तो यहाँ 30, 45 और 60 डेज का पीरियड है। जैसे वहां है ना 75, 115 और 130, तो यहाँ पर क्या है 30, 45, 45, 60. हाँ 54F, access to books and records kept by the CD and maintained at IU or government authorities or any other person. He will attend the meetings of board of directors और तो बोर्ड की मीटिंग होती रहेगी, क्योंकि बोर्ड सस्पेंड नहीं हो रहा यहाँ पर, है ना। He can appoint accountants, legal or other professionals. So 2 registered valuers within 3 days of the commencement date. He will collect all information relating to the assets, finances and operations and payments for previous 2 years of CD of the corporate debtor for determining the financial position of the corporate debtor and the existence of any transactions, ठीक है। He will prepare the list of assets and liabilities as on the initiation date. Financial institutions of CD, employees of CD, and board of directors of CD shall provide all information and support to RP. तो क्या लिखा, they shall provide all information and support to RP. अब दो चीजें हो गई, जैसे क्लास में होता है ना, क्लास टीचर होता है, एक मॉनिटर होता है। तो क्लास टीचर तो वही है सीडी, ये मॉनिटर बना दिया। The fees of the RP and any expenses incurred by him for conducting the same shall be determined in such manner as may be specified, provided that the COC may impose limits and conditions on such fees and expenses, ठीक है। तो COC लिमिट्स लगा सकती है on fees and expenses, provided further that the fees and expenses for the period prior to the constitution of COC shall be subject to ratification by it. The fees and expenses referred to in subsection 6 shall be borne in such manner as may be specified. 54H, H से क्या बना, हैविंग कंट्रोल, हम ही रहेंगे मालिक। तो ड्यूरिंग PPARP कंट्रोल ऑफ CD शैल रिमेन विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स ऑफ CD। तो H को मैं ऐसे याद करता हूं, हम ही रहेंगे मालिक। तो they shall endeavor to protect and preserve value of the CD and manage operations as a going concern. So this is not in case of CIRP. वहां पर क्या होता है, कंट्रोल वेस्ट विद IRP और RP। अब 54J, जे को मैं ऐसे याद करता हूं, जाओ या जगलरी। अगर जगलरी कर दी सीडी ने, क्योंकि सीडी ही देखो, सीडी सारे काम कर रहा है, शुरुआत से सीडी इन्वॉल्व है। उसी ने लिस्ट बनाई P2 में, उसी ने P10 में लिस्ट बनाई, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाया, बेस रेजोल्यूशन प्लान बनाया, है ना। अब PPIRP चल रही है, तब भी उसको कंट्रोल दिया हुआ है। सिर्फ उसको ये कहा है कि भाई जो इंफॉर्मेशन मांगे आरपी उसको दे दो। लेकिन अब COC को लगता है भाई गड़बड़ कर रहा है ये सीडी, उसको हटा सकते हैं। तो COC एट एनी टाइम विद 66% वोटिंग कैन रिजॉल्व टू वेस्ट द मैनेजमेंट विद RP। अभी देखो RP का रोल लिमिटेड था, क्यों, क्योंकि कंप्लायंस तो CD कर रहा था। एक तो रोल उसका ट्रिपल रोल मैंने बताया था, एक तो रोल है बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन। वो रोल क्या है कि भाई वो देखेगा कि एक रिपोर्ट उसको बनानी है फॉर्म 8 के अंदर, है ना। एक तो ये है,
और उसके बाद में और उसको कंडीशंस देखनी। दूसरा रोल क्या था? दूसरा रोल था एप्लीकेशन एडमिट हो गई, अब वो देख रहा है कि ये सीडी कंप्लायंस वगैरह सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, और गड़बड़ है तो सीओसी को रिपोर्ट करना। तीसरा रोल क्या है? अब सीडी क्या है, कुछ गड़बड़ कर रहा है तो सीओसी ने रिप्लेस कर दिया और इसको ही पूरा कंट्रोल दे दिया, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। तो तीन तरह से फीस मिलती है इसको, ठीक है। एक बिफोर इनिशिएशन ऑफ पीपीआईआरपी, एक नॉर्मल पीपीआईआरपी, और तीसरा व्हेन कंट्रोल इज आल्सो वेस्टेड विद आरपी। आरपी। ठीक। तो COC at any time with 66% voting can resolve to vest the management with RP. On such a resolution, RP to submit application to AA. If AA is of the opinion that management should be given to RP, it will order as such. तो COC तो रेजोल्यूशन पास करेगा, अल्टीमेटली तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को डिसीजन लेना है ना, कि भाई सीडी को हटाना है या नहीं हटाना। 54I, आई क्या है? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। Based on the list of claims submitted to RP by the CD in foregoing sections, RP to form COC within 7 days from the commencement date. 7 दिन के अंदर इसको COC बनानी है. So COC formed will get altered on the basis of updated claim list. Decisions taken based on existing COC will not affect due to such alteration. वो CIRP में भी होता है ना, जो जिस डेट से एडमिट हुआ उसके पहले वाले डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकता, है ना। तो पहली सीओसी मीटिंग कब करनी है? विद इन 7 days ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सीओसी। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 21 विल अप्लाई एक्सेप्ट सबसेक्शन 1 वेयर द कॉर्पोरेट डेट इज ओनली क्रेडिटर्स इन ए क्लास। ठीक है, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि सिर्फ एक क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हो और कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं, है ना। तो कमेटी में कौन आएगा? एआर आएगा। ठीक। अगर ओसी है तो COC will be 10 largest OC, 1 representative worker, 1 representative of employees. तो क्या OC के केस में भी रिलेटेड अनरिलेटेड वाली कॉन्सेप्ट चलेगी? द आंसर इज यस। ठीक। वोटिंग राइट्स ऑफ सच COC विल बी इन द रेशियो ऑफ टोटल डेट ऑफ CD। टोटल डेट क्या होगा? डेट ड्यू टू OC प्लस वर्कमैन प्लस एम्प्लॉइज। अगर कोई चेंज होता है इन कंपोजिशन ऑफ COC, दैट शैल बी इन्फॉर्म टू ऑल क्रेडिटर्स विद इन 2 days ऑफ सच चेंज। RP can call meeting of COC as and when required. और जो मीटिंग वाले रूल्स हैं, तो क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग 33% ऑफ वोटिंग राइट्स कैन इन्फॉर्म RP टू कॉल द मीटिंग। नोटिस ऑफ मीटिंग टू बी गिवन टू ऑल क्रेडिटर्स बिफोर 3 days ऑफ द मीटिंग। दिस टाइम कैन बी रिड्यूस्ड टू 24 hours, 48 hours where there are representatives in COC. Notice may be sent by email, text or attachment. Subject line of mails will be the name of the CD, place, date and time of meeting. Quorum कितना है? 33% of voting physically or video or visual media. COC may modify this quorum in future meetings. अगर adjourn करनी है तो it shall be held at same time, place on the next day and shall be correct with members attending it. ये सब वो CIRP वाले प्रोविजन है। RP to chair the meeting and RP to ensure that required quorum is present throughout the meeting. तो 54I चल रहा है, कमिटी विद क्रेडिटर्स इन ए क्लास। RP shall provide the list of creditors in each class to the respective authorized representatives within 3 days of the commencement of the process. ठीक है, RP ने लिस्ट देनी है ना, और अपडेटेड लिस्ट एज एंड व्हेन अपडेटेड। The authorized representative shall have no role in receipt of or confirmation of claims of creditors of the class he represents. CIRP में भी यही होता है, सेम, है ना। इसका एक फायदा ये भी है कि इसके साथ साथ दूसरे प्रोसेसेस भी रिवाइज हो सकते हैं। अगर आप PPIRP को ध्यान से पढ़ो तो आपका देखो वॉलंटरी लिक्विडेशन भी रिवाइज हो जाएगा, आपका नॉर्मल CIRP भी रिवाइज हो जाएगा, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी से भी कुछ इन्होंने प्रोविजंस ले रखी, है ना। तो आपको पूरा एक होलसम पिक्चर सामने नजर आ जाएगी। RP shall provide electronic means of communication between the authorized representative and the creditors in the class. Voting share of a creditor in a class shall be in proportion to the financial debt, which includes an interest at the rate of 8% per annum. ठीक है,
unless a different rate has been agreed to between the party. वही CIRP वाला problem. The authorized representative shall circulate the agenda to creditors in a class and may seek their preliminary views on any item in the agenda. ठीक है, ये सब चीजें वहीं से ही ले रखी है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो ही गया। 54K, 54K क्या बोलता है? के बोलता है कौन बनेगा किंग। किंग से इसको याद रखना है आपको। तो अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, रिव्यू एंड कंसिडरेशन ऑफ बेस रेजोल्यूशन प्लान बाय COC। अभी तक क्या है, अभी कोई प्लान नहीं आया, एक ही प्लान है, बेस रेजोल्यूशन प्लान सीधे दिया। तो क्या आउटसाइडर से भी रेजोल्यूशन प्लान आ सकता है? तो आंसर इज यस। देखो पहला प्रेफरेंस इसको है, ठीक है। इसको ये कहेंगे, सबसे पहली बात तो ये कहेंगे कि देखो भाई बेस रेजोल्यूशन प्लान आपने जो भी दिया है, आप ये समझो बात को। एक तो 66% अनरिलेटेड एफसी ने पहले ही देख लिया, वो है ना, बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन। दूसरा उसमें क्या कहा गया कि भाई जो इनिशियल प्लान है उसमें कोई हेयर कट नहीं होना चाहिए ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ने तो वोट किया है नहीं, अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर ने वोट किया ना। सो CD shall submit base resolution plan to RP within 2 days of the commencement date and RP to present this to COC, ठीक है। COC may give an opportunity to CD to revise the base resolution plan, ठीक है, before its approval or calling of resolution applicant from prospective resolution applicants. Section 30 shall be applicable regarding submission of resolution plan. So COC will approve the base resolution plan for submission to the adjudicating authority if it does not impair any claims owed by the corporate debtor to the operational creditors, ठीक है। अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के क्लेम में कोई इम्पेयरमेंट नहीं है तो ये वाला प्लान भी सबमिट कर सकते हैं, नए प्लान इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर COC इस बेस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव नहीं करती ड्यू टू द फैक्ट दैट इट इम्पेयर्स क्लेम्स ऑफ OC और ड्यू टू एनी अदर रीजन, RP shall invite resolution plan from prospective resolution applicants to compete with base resolution plan. अब आप इसको ऐसे समझो कि जैसे एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होता है, ये जो CD है ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है। कई बार होता है ना कंपनी में वैकेंसी निकालते हैं तो डिपार्टमेंट वाला भी कैंडिडेट होता है और आउटसाइडर से भी क्वेरीज इनवाइट करते हैं, है ना। तो ये वही केस। तो इस केस में क्या होगा, ये जो है कंपीट करेगा विद बेस रेजोल्यूशन प्लान and call within 21 days from the commencement date in Form P11. RP will provide the evaluation metrics and other information to prospective applicants as approved by the COC. On receipt of resolution plan, RP to confirm whether such plan confirms the requirement of Section 30 subsection 2. 30 subsection 2 में क्या है, वही liquidation value. The resolution professional shall present to the COC for its evaluation resolution plans which conforms to the requirement referred to in subsection 2 of section 30. COC to select one amongst the present. उनमें से एक को सेलेक्ट करें, एक तो ये डिपार्टमेंटल है ही, एक उसमें से कर देंगे और दोनों का फिर कंपटीशन कराएंगे, बिडिंग कराएंगे। The selected resolution plan shall compete with base resolution plan, ठीक है, and finalized resolution plan shall be approved by COC with 66% with such terms and conditions of COC and RP to apply with COC approved resolution plan. अगर मान लो COC कोई बेस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव नहीं करती या कोई दूसरा प्लान है उसको भी नहीं अप्रूव करती तो RP क्या फाइल करेगा, एप्लीकेशन फाइल करेगा फॉर टर्मिनेशन ऑफ दिस प्रोसेस। यहाँ लिक्विडेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। लिक्विडेशन बहुत रेयर सिचुएशंस में है, वो आगे पढ़ेंगे। नॉर्मल सिचुएशंस में PPIRP में क्या होता है, या तो ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, भाई कोई प्लान आया नहीं तो जैसे था वैसा रहेगा CD, है ना। When base resolution plan is approved by COC with impairing operational creditors, so COC may require the promoters to dilute shareholding etc. मतलब अगर बेस रेजोल्यूशन प्लान आया, अब इस स्टेज पर हेयर कट हो सकता है,
इनिशियली नहीं हो सकता, है ना। लेकिन अब तो compete कर रहे हैं, नए वाला भी तो हेयर कट दे रहा है ना, तो ये भी हेयर कट दे सकता है। तो सीओसी क्या कहेगी, प्रोमोटर्स को कहेगी भाई तुम देखो हेयर कट दे रहे हो अपने क्रेडिटर्स को, तो तुम भी अपना शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करो, ठीक है। एंड इफ दिस इज रिजेक्टेड देन रीजंस फॉर सच रिजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड बाय द सीओसी, ठीक है। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज और है, दैट द सीडी में सबमिट द बेस रेजोल्यूशन प्लान इंडिविजुअली और विद एनी अदर एप्लीकेंट। लेकिन 29 ये लगेगा, इम्पेयरमेंट ऑफ क्लेम्स ऑफ ओसी मीन्स रिडक्शन ऑफ देयर कंफर्म्ड क्लेम्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 54 के। ये पूरा प्रोसेस है 120 डेज का। Sir, can you please explain impairment, sir? हाँ, इम्पेयरमेंट मीन्स, मतलब इम्पेयरमेंट देखो impairment of ऐसा है, plan का है, other impairment. What are the other impairments? Other than impairment of claims, what are the हाँ other impairments, sir? वही है, इम्पेयरमेंट ऑफ क्लेम्स ही होगा, और कौन सा होता है इम्पेयरमेंट। Okay, that's the only impairment. हाँ, ठीक है सर। ये हो ही गया हमारा। उसके बाद में इनविटेशन फॉर रेजोल्यूशन प्लान, रेगुलेशन 43 क्या बोलता है, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल पब्लिश ब्रीफ पर्टिकुलर्स ऑफ द इनविटेशन फॉर रेजोल्यूशन प्लान्स इन फॉर्म P11। Form P11 shall provide the last date for submission of resolution plans, which shall not be less than 15 days. It shall not require any non-refundable deposit for submission of or along with the resolution plan. Form P11 shall state where the invitation for resolution plans can be downloaded or obtained from, and it shall include the basis for evaluation, basis for considering a resolution plan significantly better than another resolution plan, tick size, and the manner of improving a resolution plan. ये सारा प्रोसेस, अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। अब देखो ये प्रोसेस हमने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है। सो सीडी शेल सबमिट दी बेस रेजोल्यूशन प्लान टू आरपी एंड आरपी टू सबमिट टू सीओसी विद इन 2 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ पीपीआईआरपी। नाउ सपोज बेस रेजोल्यूशन प्लान में सारे ओसी को पेमेंट कर रहा है, ठीक है ना, तो इसी को अप्रूव कर सकती है सीओसी। सो सीओसी में अप्रूव द बेस रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है। नाउ सपोज सीओसी डज नॉट अप्रूव द बेस रेजोल्यूशन प्लान, तो क्या होगा, आरपी शेल इनवाइट प्लान्स फॉर कंपटीशन विद बेस रेजोल्यूशन प्लान। Yes, sir. अगर यही अप्रूव कर दिया तो क्या होगा, आरपी टू सबमिट अप्रूव्ड प्लान टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विच में बाय ऑर्डर आइदर अप्रूव और रिजेक्ट। अब मान लीजिए दे हैव इनवाइटेड मोर प्लान्स, देन व्हाट विल हैपन, सो सीओसी विल इवैल्यूएट the plans presented by the RP and select the best resolution plan. Now there could be two situations. Suppose X plan था, है ना, अब X is better than the base resolution plan. Then X will compete with the base resolution plan in the manner specified. वो Swiss challenge mechanism है, that we will see. So either X or base resolution plan shall be selected. So COC may approve the selected plan और उसको एप्लीकेशन दे देंगे, और अगर अप्रूव नहीं हुआ तो देन दे विल फाइल द एप्लीकेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ दिस प्रोसेस। तो ये पूरा अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान का प्रोसेस। स्विस चैलेंज मेथड क्या है, अभी हमने कहा ना कंपटीशन होगा, एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है और एक वो जो है अपना आउटसाइडर है, ये बिडिंग मैकेनिज्म है। सो इट्स अ बिडिंग प्रोसेस वेयर इन ए बिडर मेक्स एन अनसॉलिसिटेड बिड टू द ऑक्शनियर। So once approved, the auctioneer then seeks counter proposals against the original bidder's proposal and chooses the best amongst all options. The original bidder in most cases is granted the right of first refusal. If the original bidder agrees to match its offer to the challenging proposal, the bid is awarded to him, else it is awarded to the challenging bidder. This process is generally used in public procurement. सर ये CIRP में नहीं होता सर ये स्विस चैलेंज मेथड? नहीं, ओनली इन PPIRP. ओके, so why is that sir? भाई देखिए ऐसा है ना, here the idea is to promote the MSME sector. So they want to give you opportunity till the last moment. Like Okay. in case of company, you would like to retain the departmental candidate. अगर वो बिल्कुल ही बेकार है तो आउटसाइडर को सेलेक्ट करोगे, है ना। ओके ओके। तो सेम मतलब वो थॉट वही है
कि भाई उसको प्रोटेक्शन देना है ना एमएसएमई को। हम्म। अब उसको क्या, देखो भाई एक आदमी है जो आउटसाइड रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, ही इज ऑफरिंग ए बेटर प्लान, तो उसको कहे भाई तुम इससे मैच कर दो, और तुम मैच कर दोगे तुम्हें दे देंगे। ओके। इफ इट डजंट मैच तो फिर तो भाई उसको राइट है ना, जो नया रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, सो ही विल टेक द कंपनी। राइट सर। नाउ 54L 54M ये क्या बोलता है? इफ रेजोल्यूशन प्लान, और आपको रेजोल्यूशन प्लान में पता है कि एवरी रेजोल्यूशन प्लान इज कंक्रीटाइज टू ए स्कोर। हमने सीआईआरपी में भी देखा, आउट ऑफ 100 स्कोर अलॉट कर देते हैं, है ना। भाई रेजोल्यूशन ए है, रेजोल्यूशन प्लान ए है, उसका स्कोर 70 है, दूसरे का 80 है, हमने देखा ना। तो स्कोर असाइन हो जाता है, क्योंकि हर रेजोल्यूशन प्लान की अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी। कोई बोलेगा मैं 100 करोड़ इन्फ्यूज करूंगा, दूसरा बोलेगा 80। तो हाउ दे विल बी ब्रॉट टू कॉमन प्लेटफॉर्म? थ्रू दिस मैकेनिज्म ऑफ इवेल्युएशन मैट्रिक्स, है ना। तो इसमें क्या होता है, एक स्कोर बना देते हैं हर रेजोल्यूशन प्लान का। और फिर ये टिक साइज क्या है, टिक साइज बना देते हैं। मान लो जैसे 100 में से स्कोर दे दिया, एक को दे दिया 65, दूसरे को दे दिया 70, तो वो टिक साइज कहते हैं कि भाई जैसे 5 का टिक साइज है, तो टिक साइज से इंप्रूव करना है आपको, ये है। So if resolution plan conforms to the conditions which are given in section 30 subsection 2, and if resolution plan has provision for its effective implementation, adjudicating authority shall approve the resolution plan within 30 days. ठीक है। Approved resolution shall be binding on all the stakeholders. Moratorium shall cease, and RP shall forward all records of PPIRP process to the board to record in its database. Where resolution plan does not satisfy the conditions as above, A will reject the resolution plan within 30 days and shall pass an order under section 54N, termination of PPIRP. On passing of order under section 54N, A shall pass order under section 33, liquidation. PPIRP cost shall be part of liquidation cost. सेक्शन 54M क्या है, ये अपील। M को हम कैसे याद करते हैं, मीलॉर्ड, है ना। तो M से बना मीलॉर्ड। तो 54M अपील है, अपील अगेंस्ट रिजेक्शन ऑफ पीपीआईआरपी ऑर्डर एज अबव में बी मेड अंडर सेक्शन 61(3). सीओसी में टर्मिनेट द पीपीआईआरपी एट एनी टाइम विद 66% वोटिंग, तो ये कभी भी टर्मिनेट कर सकते। एंड कॉस्ट ऑफ पीपीआईआरपी शैल बी बोर्न बाय द सीडी, एंड सीओसी में विद 66% वोट कैन टर्मिनेट द पीपीआईआरपी एंड इनिशिएट सीआईआरपी, क्योंकि देयर कुड बी ए सिचुएशन वेयर बोथ सीआईआरपी एंड पीपीआईआरपी कैन बी अवेल्ड। सीआईआरपी में मिनिमम थ्रेशोल्ड कितना है, 1 करोड़ है ना। पीपीआईआरपी में कितना है, 10 लाख है। इसका मतलब अगर डिफॉल्ट 1 करोड़ या ज्यादा है तो दोनों ही प्रोसेस अवेल कर सकते हैं, है ना। So COC with 66% vote can terminate the PPIRP and initiate CIRP if it is eligible for this. मान लो डिफॉल्ट ही 50 लाख का है, तो CIRP शुरू नहीं हो सकती, है ना। On such a decision of COC, RP to file application with AA, and AA within 30 days shall pass an order terminating PPIRP and passing process under CIRP. So ये जो ऑर्डर है, it shall be considered an order under section 7. तो सेक्शन 7 की एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। Shall pass order appointing RP subject to written consent of RP and fulfillment of conditions, and shall declare the PPIRP cost shall be part of the CIRP cost, and CIRP commencement date shall be considered as the date of such order. तो वो जो ऑर्डर की डेट होगी वो उसको मानेंगे हम CIRP commencement date। ये हमने कर ही लिया, है ना? ये हो ही गया, अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान हो गया। ये ड्यूटीज ऑफ आरपी है, आप देख लीजिएगा इसको। कुछ पेनल्टीज भी हैं, तो ए में इम्पोज पेनल्टी, ये यहां पर ए लगा दिया, ठीक है, 1 लाख टू 1 करोड़। So if it is started with a fraudulent or malicious intent, intention to defraud any person, officer of CD manages its affairs with intent to defraud creditors or for any fraudulent purpose, तो पेनल्टी लग सकती है 1 लाख टू 1 करोड़। ये है टर्मिनेशन ऑफ पीपीआईआरपी। तो कौन सी सिचुएशन होगी,
in which this process may be terminated. If no resolution plan is approved by COC within 90 days, COC rejects the selected resolution plan. A rejects the resolution plan. COC resolves to terminate the PPIRP. COC resolves to initiate CIRP. And where A ordered for vesting of the management of the CD with RP and the COC approved a resolution plan which does not result in change in management or control of CD. ठीक है, तो लिक्विडेशन ऑर्डर किस सिचुएशन में होता है? लिक्विडेशन ऑर्डर जो है बहुत स्पेयरिंग सिचुएशंस में होता है. कब? व्हेन सीओसी कैन नॉट डिसाइड फॉर लिक्विडेशन एंड पीपीआईआरपी. सीओसी डिसाइड नहीं करती लिक्विडेशन. नॉर्मल सीआईआरपी में क्या होता है? सीओसी में डिसाइड फॉर लिक्विडेशन. लेकिन पीपीआईआरपी में क्या होगा? पीपीआईआरपी में सीओसी कैन नॉट डिसाइड फॉर लिक्विडेशन. सीओसी क्या कर सकती है? या तो अप्रूव कर सकती है या टर्मिनेट के लिए कह सकती है. ये 54 एंड में एक स्पेशल कंडीशन दे रखी है. क्या स्पेशल कंडीशन है? इफ ए इज सेटिस्फाइड दैट सीओसी अप्रूव्ड प्लान डज नॉट कंप्लाई विद सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 रिक्वायरमेंट. एक तो वो सिचुएशन है. दूसरा, हमने 54J पढ़ा था. 54J क्या था? 54J was talking of situation where the CD is playing a fraud on the company, है ना? And then management is vested with the RP. 66% approval. अब मान लीजिए यहां पर उसको हटा दिया सीडी को, और जो रेजोल्यूशन प्लान लाए उसमें वो सीडी दोबारा एंटर कर रहा है. जिसको बाहर निकाला था वही दोबारा एंटर कर रहा है रेजोल्यूशन प्लान के थ्रू. Where A ordered for vesting of management of the CD with RP and the COC approved a resolution plan which does not result in change in management or control of CD. मतलब जो मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट कंट्रोल में क्या होता है? वो मैनेजमेंट कंट्रोल, आपको जो रेजोल्यूशन प्लान देना है उसमें क्या लिखा है कि सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 की रिक्वायरमेंट हो. और सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 की रिक्वायरमेंट क्या है? कि मैनेजमेंट या कंट्रोल किसके पास होगा. लिखा है ना? तो अगर ये लिखता है प्लान में कि मैनेजमेंट या कंट्रोल उसी के पास होगा जिसको हटाया था, तो ये क्या करेगी? लिक्विडेशन ऑर्डर. ठीक है. और सेक्शन 33 सब सेक्शन 3 है, वेयर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड अंडर पीपीआईआरपी इज कंट्रावीन्ड बाय द सीडी. तो 3 सिचुएशंस में लिक्विडेशन हो सकता है. ठीक. स्विच टू सीआईआरपी. 54O. 54O को हम कैसे याद करते हैं? जीरो. ओ मतलब जीरो लग रहा है ना? तो हीरो टू जीरो. ये पहले हीरो बन रहा था, सोचा था मेरे पास ही कंट्रोल आएगा, अब ये जीरो दोबारा सीआईआरपी चले. सो सीओसी एट एनी टाइम आफ्टर इनिशिएशन ऑफ पीपीआईआरपी बट बिफोर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान बाय 66% वोट मे रिजॉल्व टू इनिशिएट सीआईआरपी. अगर एलिजिबल है. एलिजिबिलिटी क्या है? वो एलिजिबिलिटी वाले 1 करोड़ या और कंडीशन होती है. ठीक. So RP to intimate adjudicating authority of the decision taken by COC to initiate CIRP, and A by order shall terminate the PPIRP, appoint RP under PPIRP as IRP. अब ये भी क्या हुआ? इसका डिमोशन हो गया. PPIRP में इसका नाम था RP, अब इसका नाम हो गया IRP, है ना? Declare that PPIRP cost shall be included in IRP cost, and this order of A shall be deemed to be order of admission under section 7. And CIRP shall commence from the date of such order. तो ये 54O है. ये सारे फॉर्म्स हैं, P1, P2, P3, ये सारे फॉर्म्स लगा रखे हैं इसको. ठीक है. तो ये हमने मोटा मोटा प्रोविजन देख लिया. ठीक है. I have a small doubt, sir. Yes, please. Sir, is it, I mean, most of the MSMEs, I mean, are they opting for CIRP, sir, or are they opting for PPIRP, sir? Not many cases have come in PPIRP. बहुत कम केसेस आए हैं PPIRP में. अंडर मतलब ये CIRP में वो चल रहे हैं सर केसेस? CIRP में तो बहुत आते हैं. हाँ. MSME वाला? MSME वाला भी आते हैं हम. राइट सर. हाँ. ओके. PPIRP में ज्यादा केसेस नहीं आते. राइट सर. ठीक है जी. तो आज की कथा यही समाप्त करते हैं. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. बाकी जो केस स्टडीज है, केस स्टडीज फिर हम अगले सेशन में कर लेंगे. तो कल से हमारी यात्रा शुरू हो रही है, तो फिर मैं आपको ग्रुप में लिख दूंगा जैसा भी होगा. अभी कम से कम मंडे तक तो कोई क्लास है नहीं, है ना?
शुभ यात्रा सर, हैं? शुभ यात्रा हाँ आपके थैंक यू सो मच। बट आई स्टे कनेक्टेड, मैंने वो इंटरनेशनल रोमिंग ले लिया है, कोई इशू नहीं है। तो यू कैन ऑलवेज सेंड मी मैसेजेस, आई कैन कॉल यू ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं। ओके जी, गुड नाइट। गुड नाइट सर। Sir, happy journey, sir. Oh, हैप्पी thank you so much.